Bismillahirrahmanirrahim. We are doing these lectures in clinical ophthalmology series, and we have covered basic concepts of schematic eye, light ray, tracing of light ray, and the light ray will be always be coming from left to right, and the laws of refraction, total internal reflection, and then the concept of vergence, that the parallel lights have zero vergence and the diverging rays have minus vergence, and the converging rays have plus vergence. And similarly, we have made the assumption of distances on the right of the lens will be positive and on the left of the lens will be negative. And we have discussed thoroughly the formula to convert distances into diopters and diopters into distance with their notation of minus and plus, which is very important for the final calculation of the image distance and the location of the image. And we discussed the basic principles in the physics of light, image formation from infinity to a point between the center of the lens and focal point. And we have discussed already the conjugate foci are the points in space on which image and object can replace each other or conjugate to each other. And we have discussed thoroughly the concept of far point of a lens and an optical system. And we have also discussed that for discussion purpose, we fuse the cornea and the lens into one plane of 60 diopters. And if we do that, then we can discuss the far point of the eye as well. And the far point of the myopic eye is at infinity, and the far point of the myopic eye is in front of the eye, and hyperopic eye is behind the eye. And the retinoscopy or the refraction of the patient is an art of finding out the far point of the eye. And if the correcting lens spectacle correction, the far point of the correcting lens matches the far point of the eye, the image will form on the retina. And we had a very interesting concept that the patient is minus 5 diopters myope, but we can correct that patient with a plus 5 diopter lens, which is logically looks impossible. But with the equation and with the correct concept of far point, we saw that if we place the plus 5 diopter lens at a point where the focal point of that lens matches with the far point of the eye, the image falls on the retina, though its quality of the image is compromised. So with that, we move forwards now. And today we are going to the error lens concept. This concept is almost the same one which we were discussing throughout. Two things we have been discussing right from the beginning. One is f is equal to 1 over d and d is equal to 1 over f. And we were always discussing that if the far point of the patient is 33 centimeters in front of the eye, the lens needed to correct is 1 over 33. That is almost 3 diopters. The patient is minus 3 diopters myope. This concept is the error lens concept. That ignoring that equation and tracing with the error lens concept, we can, this is another way to calculate the refractive error of the patient. That how much that the concept I had been discussing from the beginning, that
the auto-refraction or the retinoscopy findings are not status of refraction, or rather demand of the eye in terms of how much it's overcorrected or how much it's undercorrected, how much power it lacks to get the focus back on the retina, or how much power it is overcorrected that it's making the image in front of the retina. That's a error lens concept. We will see it. It's another way of thinking. If you just keep on thinking like this statue. So we know that the rays of are of zero version and the patient is myope, they will cross in front of the retina in the vitreous, and that is because of the too much converging power inside the eye. And if this myopic eye has an extra plus lens, and we know the amount of that extra plus, so that extra plus is actually causing this refractive error. And if we simply algebraically neutralize that extra plus with the minus, the image will be pushed back. So this is the extra plus which this eye contains, which has made the rays converge more than needed and cross in front of the retina. Thus, a circle is formed on the retina instead of a point focus. So we can think of this it as a resulting from an extra, as in exchanging or unneeded plus lens built into the myopic eye. It is this extra plus lens that causes excess convergence that results in myopic refractive error. So this concept we have been discussing in simple Urdu terms again and again. So this is the concept of error lens. The amount of extra power which is not letting the rays focus on the retina is error lens. So it is as if the myopic eye has an extra plus lens. The error lens concept explains why a myopic eye requires a minus lens to correct the refractive error. The minus lens is needed to counteract the excess convergence provided by the plus error lens. वो जितनी error है, refractive error क्या है? This is what we are discussing. हम क्या कहते हैं? Refractive error कितनी है? तो refractive error कितनी है? This is what refractive lens error ही है ना? कि कितने diopter की error है patient को कि उसको हम correct कर दें तो उसका image दोबारा retina पे बन जाएगा. So this is error lens concept or refractive error lens concept. In hyperopic eye, we know that the formation is behind the eye. Why it's behind the eye? Because the eye is lacking some power to converge. It is not converging the rays ideally. It lacks some power. So we can describe it to that eye is lacking some converging power, or it has some extra diverging power. To explain the extra divergence, we can think it as a result from an extra minus lens built into the hyperopic eye, like this. ये extra minus lens है, which has actually made these rays diverge more than needed or converge less than needed. If we calculate this, this is the amount of lens which we can neutralize with the plus lens
and the image will fall back on the retina. So this is error lens concept. The error lens keeps parallel rays from falling on the retina. It doesn't let them fall on the retina in both the cases. If the error lens is -2, the corrective lens needed, it's as if corrective error is -2 diopters, the corrective lens needed to correct that will be +2. And if the error lens is +4 diopters, the corrective lens needed will be -4 diopters. तो ये जो needed correction है, ये हम इसको कहते हैं refractive error. हम to make it simple, जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं +2 is needed for this patient. So that's again the same thing coming, that retinoscopy will tell you what is needed to correct that error. सिंप्लीफाई कर दिया होगा, इसलिए कई बार हमें थोड़ी सी उलझन होती है कॉन्सेप्ट्स में, कि वो समझ रहा होता है कि मतलब बच्चे शुरू में यही समझते हैं कि ये पावर है आई की पावर नहीं है। खासतौर पर ऑप्टोमेट्रिस्ट बच्चों को जो बायोमेट्री वगैरह नहीं करते, जिनको कैरेटोमेट्री का इतना आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ये नीड है आई की, जो रेटिनोस्कोपी है, टू करेक्ट दैट एरर। तो रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं हम असल में उसका क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर है, लेकिन असल में जो फाइनल कैलकुलेट करके लिख रहे हैं वो द amount of length needed to correct that error, what we are calling refractive error. Note that the spectacle corrector hyperopes and myopes are looking through both a plus and a minus lens. The only difference is the order in which these lenses are placed in front of the eye. Minus lens या plus lens जो error lens है, उससे अंदर से वो देख रहा है, और उसको जो न्यूट्रलाइज करने के लिए लेंस लगाया है, तो वो भी दोनों से रेज तो रेटिना पे बनेगा ना। Can you think of a common optical device that is composed of a plus and a minus lens? आती है ध्यान में कोई? टेलीस्कोप में क्या होता है? A Galilean telescope is composed of a low plus objective lens and a high minus lens eyepiece. So, Brad, bring this up now. What's the relevance to refractive correction? जो बच्चा बताएगा, he will deserve a special appreciation. हम इस पॉइंट को भी क्यों लाए हैं सामने कि ये गैलीलियन लेंस बन रहा है असल में, कि उसके पास एक्स्ट्रा, ये सारा विजुअल है, आई में तो कॉर्निया है और लेंस है, टोटल पावर में डिफरेंस है, लेकिन टू अंडरस्टैंड आई के पास एक्स्ट्रा प्लस है, उसमें से भी गुजरना है, और हमने जो उसके सामने माइनस लेंस लगाया उसमें से भी गुजरना है। इसी तरह उलट कि आई जो है अगर उसमें कन्वर्जिंग पावर कम है तो उसके पास एक्स्ट्रा प्लस है तो माइनस लगाएंगे, एक्स्ट्रा माइनस है तो प्लस लगाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और ये हमने देखा कि ये गैलीलियन टेलीस्कोप में भी इसी तरह का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम उसको इस पॉइंट पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये सवाल हमने कई दफा टच किया और मैंने कहा था इसका जवाब आ जाएगा आगे। कुछ याद नहीं आया? हमने कहा था कि ये मिनिफिकेशन और मैग्निफिकेशन करते हैं। जो ऐनक है वो फोकस तो कर देती है, लेकिन इमेज को अल्टर कर देती है। That's what we are touching here. It explains the image magnification and minification effects of the refractive correction. Because a spectacle corrector hyperope is in essence looking through a Galilean telescope, the image is magnified. In contrast, because a myope is looking through a Galilean telescope backwards, the image is minified. आपने कभी वो टेलीस्कोप यूज किया है? कभी टेलीस्कोप से नहीं देखा? एक ना वो छोटी सी आ जाती होती थी, वो ऐसे बॉक्स होता था, वो खुल जाता था, तो
उसमें से जब देखते थे तो ज़ाहिर है दूर वाली चीज़ें क्यूट नज़र आती थी, थोड़ा साइज़ बड़ा नज़र आता था। तो कभी ऐसे ही अपने इंटरेस्ट के लिए बच्चे अमूमन ये करते हैं कि जो उसका आईपीस कहते हैं जिसे आप आँख रखते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं जो इमेज ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। तो अब आप ऑब्जेक्ट से देखें उल्टा करके तो चीज़ें छोटी हो जाती हैं। और अगर आप आईपीस में से देखें टेलीस्कोप की, आईपीस हमेशा छोटा होता है और ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है जनरली। तो फिर चीज़ें जो है करीब भी आ जाती हैं और मैग्नीफाई भी हो जाती हैं। तो जब आप उसके ऑब्जेक्ट में उल्टा करके देखते हैं तो उसको कहते हैं रिवर्स गैलीलियन टेलीस्कोप। वो मिनीफाई कर देती है। तो जब आप माइनस लेंस लगाते हैं तो रिवर्स गैलीलियन टेलीस्कोप होती है और जब प्लस लेंस से करेक्ट कर रहे होते हैं तो गैलीलियन टेलीस्कोप बनती है। So this causes the images to magnify in the case of plus lenses and magnified in case of minus lenses. तो ये कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं था, वो जो बच्चे का सवाल था वो जेन्युइन था। ये गैलीलियन टेलीस्कोपिक इफेक्ट की वजह से माइनस लेंसेज मैग्नीफाई करते हैं और प्लस लेंसेज मैग्नीफाई करते हैं। जब प्लस लेंस से हम करेक्ट कर रहे होते हैं तो हम ट्रू गैलीलियन टेलीस्कोप बना रहे होते हैं। एक्स्ट्रा माइनस को प्लस से हमने किया तो प्लस का ऑब्जेक्टिव बन गया और आईपीस माइनस का बन गया जो बिल्ट इन था। तो उसको मैग्नीफिकेशन टेलीस्कोप की तरह, टेलीस्कोप अब हम पढ़ेंगे आगे, फिर देखेंगे एंगुलर मैग्नीफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन क्या होती है, विजुअल फील्ड क्या होता है। तो रफली इसको आप समझ लें कि पैरेलल रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट कमिंग, आपने एक लो प्लस लेंस उसके सामने रखा, हाई माइनस लेंस के पीछे रखा, तो दिस इज नोन एज गैलीलियन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो ये क्या करती है, मैग्नीफाई कर देती है। जबकि जब आप इसको उलट कर दें और इसके ऑब्जेक्ट में से देखें और जो प्लस लेंस है वो इसका आईपीस बन जाए, तो इट इज नोन एज रिवर्स गैलीलियन। Note that the spectral character hyperopes and lobes are looking through both a plus and a minus lens. ठीक है? By the way, the telescopes are very much in play on the caps. We will discuss in lectures का नाम caps. We will discuss magnification, magnification as well as Galilean and other telescopes at length in future chapters. The error length concept. We saw this slide in chapter 5. सवाल ये कर रहे हैं कि इसके जो प्राइमरी फोकल पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट जगहों पे क्यों है। The error length concept provides a nice explanation. Compared to emmetropic eye, the myopic eye has excess convergence owing to its extra plus lens. Thus, the primary focal point of the myopic eye must be closer in order to provide the extra divergence needed to offset the plus error lens. Likewise, the minus error length of the hyperopic eye gives it less convergence power than the emmetropic eye. So as a result, it needs that offsetting divergence from its primary focal point. Primary focal point की definition देने ले आए ना, तो किसी भी आई का वो पॉइंट होता है जिससे जब रेज निकले किसी सिस्टम का लेंस का तो वो पैरेलल हो जाए। तो अगर नॉर्मल आई की पावर है 60, तो अगर वो 64 डायोप्टर है तो वो आई क्या मायोप होगी, उसके पास प्लस 4 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो उसका तो 64 से निकलेगा ना, तो करीब होगा। अगर किसी आई की पावर 56 है टोटल तो वो हाइपरोप है क्योंकि इट्स लैकिंग द प्लस पावर। तो अगर 56 है तो 60 वाली से उसका फोकल पॉइंट बढ़ जाएगा ना। तो यही बात आपको नजर आ रही है, हाइपरोपिक आई का दूर है, दूर होगी रेज तो पैरेलल करेगी ना, क्योंकि उसकी कन्वर्जन पावर कम है। इमेट्रोपिक तो नहीं है फिक्स्ड डिस्टेंस पे, तो मायोपिक जो है उसको
क्योंकि उसकी कन्वर्जन पावर ज्यादा है, तो जो उसका प्राइमरी फोकल पॉइंट है वो उसके करीब होगा तो उसको पैरेलल करेगी, थोड़ी सी डाइवर्जेंट रहेगी तो पैरेलल कर देगी। तो ये असल में ना बार-बार कॉन्सेप्ट है मत करने इसलिए जरूरी है कि कॉन्जुगेट होता है, अगला कॉन्सेप्ट पिछले को कंफ्यूज करने लग जाता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का हमने हमेशा याद रखना है कि प्राइमरी फोकल पॉइंट वो है जहाँ से रेज निकले तो वो ऑप्टिकल सिस्टम या लेंस में से गुजरकर पैरेलल हो जाए, और सेकेंडरी फोकल पॉइंट वो है जहाँ जीरो वर्जेंसी पैरेलल रेज आए और वो फोकस हो जाए। नियर पॉइंट, ये भी हम बड़ी देर से इस पॉइंट पर रगड़ रहे हैं, उसी को आप जरा साइंटिफिकली देख लेते हैं। फार पॉइंट, नियर पॉइंट, हमने फार पॉइंट को पता था वेयर द आई नॉट अकोमोडेट, दैट इज द फार पॉइंट, द पॉइंट इन फेस conjugates the retina when the eye is not accommodated। तो मायोपिक आई का और उसका तो अगर आई फुली अकोमोडेट कर रही हो तो वही पॉइंट conjugate the retina होगा, that will be near point। ये तो क्लियर है ना? When the eye is fully accommodating, the point in the space which conjugates with the retina is near point। और ये मैंने वैसे इसका बड़ा शौक है इस कॉन्सेप्ट को, तो मैं आम आउटडोर में भी डिस्कस करता रहता हूँ। अकोमोडेटिव रेंज कितनी होगी, ये कई दफा हमने डिस्कस किया कि -10 आफ्टर 10 years old बच्चे की अकोमोडेटिव रेंज कितनी होगी, -10 आफ्टर 10 years of age। क्योंकि इसमें ये सवाल बड़ा आसान इसलिए है कि 10 पे 10 कि उसकी हमें पता है अकोमोडेशन भी 10 आफ्टर है, वो -10 आफ्टर मायोप है, -10 आफ्टर मायोप है तो फार पॉइंट कहाँ होगा? 10 सेंटीमीटर पे, और उसकी अकोमोडेशन 10 है। तो अगर वो पूरी पूरी अकोमोडेशन भी एक्सरसाइज कर ले तो कितनी जनरेट करेगा टोटल? -10 मायोप और 10 आफ्टर अकोमोडेट किया, तो कुल कितना हो गया? 20 प्लस 10 तो पहले ही था उसके पास, प्लस 10 उसने और जनरेट कर लिया, तो अब कितना हो गया? 20। तो अब उसका जो पॉइंट होगा फोकस का वो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो उसकी रेंज ऑफ विजन कितनी होगी बिटवीन फार एंड नियर पॉइंट? 5 सेंटीमीटर। उस 5 में उसने लाना है हर चीज। तो जितना बच्चा मायोप ज्यादा होगा उतना टीवी ज्यादा जाएगा। तो अगर -2 आफ्टर मायोप हो तो उसका फार पॉइंट कितना होगा, और उसकी मैक्सिमम अकोमोडेशन जो कर सकता है वो 5 आफ्टर 7 हो जाएगी। तो 7 को करेंगे तो इट विल बिकम ऑलमोस्ट 14 सेंटीमीटर। तो -2 के फार पॉइंट किधर हुआ? -2 और हमने कहा वो 5 आफ्टर अकोमोडेशन कर सकता है, तो नियर पॉइंट कहाँ हुआ? 20। कैसे? 5 आफ्टर उसकी अकोमोडेशन है, तो -2 का वो भी है। हाँ, क्यों कह रहा था करना उसको, तो जवाब दे, ऐड करना। यही चीज है, वो तो उसका लेंस हमने कैलकुलेट किया चेक करने के लिए, उसमें एरर लेंस तो वो +2 है, +2 + 5 + 7 है उसके पास टोटल रेंज, +5 उसकी अपनी आई की रेंज थी और +2 उसका एरर लेंस है,
तो क्लास 5 एंड क्लास 2 7 हो गए, तो वो 14 सेंटीमीटर उस पे फोकस कर सकता है और उसकी रेंज कितनी है? हम उसका लेंस देना है वो ऐड करते हैं, इधर लेंस हम प्रोवाइड करें नहीं, उसका स्टेप्स देगा। गो थ्रू these lectures again and you will find out, या फिर आपको डॉक्टर साहब बाद में बताएंगे। 100/2 का 50 सेंटीमीटर था, तो 5 डॉक्टर उसके अकोमोडेशन से कन्वर्जेंस मिल रही है और क्लास 2 उसके पास पहले ही इसका है, तो इसलिए वो मिला के 7 होगी, तो 100/7 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 14, तो बिटवीन 14 and 50 centimeters will be his range of movement. If the patient is 5 diopter hypertrophy and he has 4.20 centimeters behind the eye, clear है ना ये? And he has 6 diopters of accommodation. What will be his point? मुझे बताओ ना कैसे हो? सोच लो। ये मैं तो बड़े तरीके से बात करता हूँ, आपको ये मैंने कई बताया है बेटा, 5 डायप्टर वो पेपर हो गया, तो 6 डायप्टर टोटल अकोमोडेशन है। 5 डायप्टर होने का मतलब है कि उसको इन्फिनिटी पे देखने के लिए इस फार पॉइंट को आगे खींच के इन्फिनिटी पे डालने के लिए 5 डायप्टर लेंस चाहिए। तो 5 डायप्टर फार पॉइंट को इन्फिनिटी पे पुश करने के लिए यूज करेगा वो। एक पेशेंट 6 डायप्टर रोग है और उसके 5 डायप्टर रोग है और उसके पास 6 डायप्टर की अकोमोडेशन है, तो वो इन्फिनिटी पे देख सकता है नहीं? कैसे? अकोमोडेशन है ना उसके पास, फार साइडेड कैसे ठीक है? फार साइडेड वो ठीक नहीं है, वो तो क्लास 6 डायप्टर हाइपरोप है, लेकिन उसके पास 6 डायप्टर अकोमोडेशन है, 5 डायप्टर हाइपरोप है, तो वो दूर कैसे देखता है? 5 यूज कर रहा है, तो बाकी कितनी रह गई? 1, तो नियर पॉइंट कहाँ होगा? उसके लिए जो रिजर्व है वो भी यूज कर लेगा, बाकी जो एक बची तो कहाँ होगा उसका नियर पॉइंट? है 1 मीटर। मुश्किल नहीं था, बट यू आर नॉट एबल टू। अगर आप सिर्फ उसके ऊपर देखते रहते तो आपको समझ आ जाती। एक तो ये तरीका है ना कि ये लाइनें इन सारी चीजों को समझना। एक मैं आपको सादा बातें हमेशा बताता हूँ कि प्लस 5 ग्रुप है बच्चा और वो 8 साल का है। कितनी दफा मैंने आपको बताया कि इसको अगर ये स्क्विंट नहीं कर रहा और यूरोट्रोपिक या इडोफोरिक नहीं है तो हमने नहीं देनी उसको प्लस। क्यों नहीं देनी? बिकॉज़ इट कैन जनरेट। हमने कैलकुलेट करना है कि ये एट एनी गिवन एज 4 साल का बच्चा है, अब हमें पता है वो 12 से 14 डायप्टर उसकी अकोमोडेशन है, वो 8-9 यूज कर सकता है वो आराम से, वो हम बाद में देखेंगे। तो उसमें से वो प्लस 4 डायप्टर का हाइपरोप है, तो दूर के लिए कितनी चाहिए उसको इन्फिनिटी पे देखने के लिए? प्लस 4। तो 8 में से कितनी उसकी दूर के लिए? प्लस 4। और नियर का हमने तय किया हुआ है कि मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर प्रैक्टिकली काफी है, तो 25 पे देखने के लिए कितनी चाहिए? प्लस 4 एक्स्ट्रा चाहिए। तो 8 डायप्टर करके उसने देख लिया, हमें क्या जरूरत है उसको मेहनत देने की? लेकिन अगर वही प्लस 7 डायप्टर हाइपरोप होता
तो +7 दूर के लिए यूज हो गया, अब उसके बाद रह ही 1 है। अब फिर हमने उसको दिखाना 25 पे ही है, तो +1 उसका अपना है, तो +4 उसको चाहिए, तो कितना प्रिस्क्राइब करेंगे हम? +3। ये बात तो ट्रांसफॉर्म पर करता है, तो आप उस तरीके से सिंपल थिंकिंग से भी इस बात का जवाब दे सकते हैं ना। बस ठीक, निकाल आ जाए। So this is the concept of near point. कि फार पॉइंट को पुशबैक करने के लिए वो अपनी कंप्लीशन यूज करेगा, फिर देखेंगे आप उसके पास कितनी है बाकी, तो बाकी को जब यूज कर लेगा तो वो उसका नियर पॉइंट होगा 100 सेंटीमीटर का जो आपने कैलकुलेट किया। तो अगर 15 मिलीमीटर का वर्किंग वर्टेक्स डिस्टेंस हो तो प्रॉपर ट्रैकिंग कितनी होगी? तो 21.5 हो जाएगा, में 20 में ऐड होगी डिस्टेंस, तो 4.65 बराबर होगी। ये वो कांसेप्ट जो हमने वर्किंग डिस्टेंस में किया था कि वो डिस्टेंस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपने एना का जो लेंथ रखा है उसके सामने करेक्टिंग लेंथ वो थोड़े फासले पे रखा है, तो उसका फोकस पुश बैक हो जाएगा। लेकिन आप तो चाह रहे थे कि 20 सेंटीमीटर पे आए, तो थोड़ा सा लेंथ आपको ऐड करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट लेंथ होगा कवर का लग जाएगा, प्रैक्टिकल लेंथ होगा तो वो जितना फासला आपने ऐड किया है 1.2 सेंटीमीटर उसमें ऐड करेंगे, तो 21.2 को आप इक्वेशन में डालेंगे। 100 डिवाइडेड बाय 21.2 इज इक्वल टू 4.6। ये हमने बड़े डिस्टेंस में बड़ी तफसील से देखा था। इनका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट यू नीड टू गो थ्रू द लेक्चर्स again and again to cement your concepts. और इसको अपने ज़हन में सोचें ना, थोड़ा सा फिलोसॉफिकली थिंक करके और मैथमेटिक्स को थोड़ा सा एनहांस करने की जरूरत है। So we end up here. In next discussion we will go through the quiz on these concepts of error lens, far point, near point and essence of practical correction. तो फिर ये चीजें दोहराई जाएंगी, but it's better if you go through the lectures again and try to grasp the concepts. और ये हमारे साथ ऐसे हुआ कि बहुत सारी चीजें भी मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो वो क्लियर हो जाती हैं, लेकिन मतलब बार बार करने से और मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में अच्छा होने से by default I have this ease, I can do this mathematical correction very quickly, and if you understand you will start enjoying your ophthalmology more. ये डेली प्रैक्टिस है, 50-60% प्रैक्टिस आपकी स्पेक्टिकल्स की है इवन एट कंसल्टेंट लेवल, तो जितना आप अच्छे होंगे सॉलिड होंगे। दूसरा ना हमारी नीयत है, हमने अल्लाह की मंजूर के लिए वायदे रहमान फीस लेना या ना लेना बात की बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में होना या पब्लिक सेक्टर में होना, अगर हमारा नॉलेज और स्किल अच्छा है और हम एक्यूरेटली उसको अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखिएगा कितने लोगों की एलिविएट करने का बायस बनता है। क्वेरीज, पेन्स, इवन जो स्ट्रेस होता है एग्जामिनेशन का, आपको पता है आगे कर सकता कि मैं हाइपरट्रोफिक करेक्शन कैसे करूं, 10 साल के बच्चे कैसे करना है, 20 साल के नौजवान को कैसे डील करना है। नाउ यू नो कि हाइपरट्रोफिक करेक्शन इज कम से कम इतना तो समझ आ गया कि इट्स एन आर्ट, जिसमें आपका पूरा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए कि इस गिवन एज पे उसका कम्यूटेटिव रिजर्व कितना है, उसकी साइकोलॉजिकल करेक्शन कितनी है, उसकी डिमांड कितनी है, कितनी वो खुद कर सकता है सप्लाई, कितनी हमने देनी है, और आया उसमें बैलेंस भी ठीक है कि नहीं। अगर वो एसोट्रोपिक है तो डिसीजन मायोपिक ओवर करेक्शन की तरफ जाएगा, अगर वो इजो है तो हम उसको प्लस को ओवर करेक्ट करेंगे। तो ये सारी साइंस आपकी साथ साथ चल रही होती है। तो एंड इफ यू अप्लाई दिस तो आप अल्लाह के बंदों की मुश्किलात को आसानियों में बदलने का करेक्ट डिसीजन करके बायस बनेंगे। और अगर ये इनबॉर्न गलत कॉन्सेप्ट इनग्रेव हो गए तो वो प्रोफेसर भी बन जाएंगे तो आप ये मिस्टेक्स करते रहेंगे।
Thank you very much.